Okay, so students, let us start with today's session. In the previous session, we have talked about our nominal interest rates, nominal discount rates and pith interest rates and pith discount rates. तो उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और फिर आगे प्रोसीड करेंगे फोर्स ऑफ इंटरेस्ट से. सो क्विकली राइट वन क्वेश्चन. आई विल डिक्टेट यू, क्विकली राइट इट. 500 is invested in an account that pays 500 is invested in an account that pays interest equivalent to a nominal discount rate of 8% per annum convertible half yearly. I will repeat till here. 500 is invested in an account that pays interest equivalent to a nominal discount rate of 8% per annum convertible half yearly. Calculate the accumulated amount in the account after 3 years. Calculate the accumulated amount in the account after 3 years. Write another question. A payment of 800 is due in 5 years time. A payment of 800 is due in 5 years time. Calculate the present value of this payment. Calculate the present value of this payment using a discount rate of 9% per annum convertible monthly. Calculate the present value of this payment using a discount rate of 9% per annum convertible monthly. So students, 2 questions, 3 minutes. Quickly solve it, then we will discuss. This is just based on whatever topics we have discussed till the last class. Okay, Dhruv, I will repeat for you. A payment of 800 is due in 5 years time. Calculate the present value of this payment using a discount rate of 9% per annum convertible monthly. Read both the questions very carefully and then start solving it. Vishnu, slightly wrong. Just check your calculations again. Your answer is slightly wrong. And students, solve both the parts and then give your answers in the chat section. Otherwise, it will become very messy for me to read. Try to solve both the questions and then give your answers. Last 60 seconds, students. Then we will discuss. Perfect, Bharat, right answer for the first part. Quickly solve the second one. Perfect, Mantasha. Just check your calculations for the first part. Slightly wrong. ठीक है, those who are doing, keep on doing it. Those who don't know how to proceed, they can look at my screen. 500 is invested in an account that pays interest equivalent to a nominal discount of 8% per annum convertible half yearly. So first of all, tell me in terms of notation, what is given to you in this question? T2 is given to you as 8%. And what you have to calculate the accumulated amount after 3 years. That means 500. And in terms of D, what will be the equation of accumulation? What you have to do? You just have to divide by 1 minus d रेज टू पावर 3. अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप d यहाँ से कैलकुलेट कर लो. कौन से फॉर्मूले से? 1 माइनस डी इक्वल्स टू 1 माइनस डी पी बाई पी होल रेज टू पावर पी. यहाँ से हमारा d आ जाएगा और उस d को यहाँ से पुट कर दोगे. दूसरा वे क्या है, यहाँ से आप हाफ ईयरली इफेक्टिव डिस्काउंट रेट निकाल लो. वो कितना निकल गया? 4%. अब हमें पता है
कि 1 साल में कितने हाफ ईयर्स होंगे 2, इसी तरीके से 3 साल में कितने हाफ ईयर्स होंगे 6. तो यू कैन सिंपली डू इट 500 अपॉन 1 माइनस डी 2/2 होल रेज टू पावर 6. So these are the two ways to solve this question by following both the ways. Bhavya, what is the answer? Perfect. 638.77 is the right answer. Now let us talk about the second part. In second part, what they have told you is payment of 800 is due in 5 years time. That means at time 5 payment is 800 and at time 0 they are asking you the PV using discount rate of 9% per annum convertible monthly. Now this time in terms of notation, what is given to you? D 12 is given to you as 9%. अब यहाँ पे भी आपके पास दो मेथड है, या तो इस D12 से आप D पे कन्वर्ट कर लो या फिर मंथली इफेक्टिव डिस्काउंट रेट निकाल लो विच विल बी 9/12%. तो दोनों वेज से मैं आपको इक्वेशन बता देता हूँ. अब आपको PV निकालनी है, सो यू विल बी जस्ट डूइंग 800 मल्टीप्लाइड बाय 1 minus d whole raised to power 5. This is one way. Another way is 800 into 1 minus d12/12 whole raised to power. एक साल में कितने महीने? 12. 5 साल में 60. So both the equations are correct. You can solve with either of the way. Final answer is coming out to be perfect online students. It is 509.24. Done? Online students, anyone having any doubt, do ask me. Dhruv, done? ठीक है, सबके आंसर्स आ गए हैं, तो प्रोसीड करते हैं. वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज फोर्स ऑफ इंटरेस्ट. फोर्स ऑफ इंटरेस्ट. तो फोर्स ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट करने से पहले अभी हम बात करते हैं. अभी हमने चैप्टर 4 में क्या देखा? इंटरेस्ट रेट हम एनुअल बेसिस पे देख रहे थे. इस चैप्टर में आके हमने इंटरेस्ट रेट की डेफिनेशन थोड़ी सी शॉर्टन करी, किस पे? पीएथली बेसिस पे. लेकिन हमने इस पी की मिनिमम वैल्यू क्या देख ली, या फिर ये बोल सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू इस पी की क्या देखी? 12. हम मंथली बेसिस पे देख रहे हैं. क्या हमने ऐसा कोई इंटरेस्ट रेट देखा जो डेली चेंज हो रहा हो? नहीं. कोई ऐसा इंटरेस्ट रेट देखा जो हर सेकेंड पे चेंज हो? तो फोर्स ऑफ इंटरेस्ट हम किस बेसिस पे देखेंगे? अगर हमारे इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज होने लग जाए डेली बेसिस पे, हम बोल सकते हैं कोई टाइम यूनिट ऐसा हो जो पी टेंडिंग टू इन्फिनिटी चला जाए. अगर ये पी टेंडिंग टू इन्फिनिटी चला जाए, इस बेसिस पे अगर हम इंटरेस्ट रेट देख रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? फोर्स ऑफ इंटरेस्ट. लिमिट आई पी वेयर पी इज टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी विल बी नोन एज डेल्टा. एंड व्हाट डू वी मीन बाय दिस डेल्टा? इज फोर्स ऑफ इंटरेस्ट. तो इसका एक डेरिवेशन देख लेते हैं छोटा सा जल्दी से. 1 प्लस आई को हम क्या बोलते हैं? 1 प्लस आई पी बाई पी होल रेज टू पावर पी. ठीक है, अब यहाँ पे हम लिमिट्स लगा देते हैं कि पी टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी. तो दिस 1 प्लस आई विल बिकम लिमिट पी टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी 1 प्लस आई पी बाई पी होल रेज टू पावर पी. यहाँ पे कुछ फॉर्म मिलती जुलती लगनी चाहिए एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से, वेयर लिमिट एन टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स बाई एन होल रेज टू पावर एन विल बिकम वॉट? ई रेज टू पावर एक्स. सिमिलरली यहाँ पे 1 प्लस आई इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? ई रेज टू पावर, क्विकली टेल मी, ई रेज टू पावर आई पी, और पी की जगह क्या लिख दूंगा? इन्फिनिटी. और आई इन्फिनिटी अभी अभी हमने क्या देखा है, किसके इक्वल होता है? डेल्टा के. तो दिस विल बिकम ई रेज टू पावर डेल्टा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप. यस, इट इज अ Euler formula. Very good, Vishnu. Very very important relationship. And what will be the relationship of delta equals to in terms of I? It will be simply delta equals to ln 1 plus I. You can write down both the relationships. Is it clear? Now based on this, quickly solve two simple questions, very simple questions. 500 is invested in an account. 500 is invested in an account that pays force of interest of
8% पर आना। बच्चे बच्चे का क्वेश्चन आया सर यहाँ पे हमने ln की जगह log लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन उस log के ऊपर आपको स्ट्रिक्टली क्या लगाना पड़ेगा, बेस e, बिकॉज यहाँ पे जो हमारा log यूज़ हो रहा है वो नेचुरल log है, या तो log बेस e यूज़ कर सकते हो और ln यूज़ कर सकते हो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो मोहन बेटा। अच्छा एक क्वेश्चन आया एकांश का, डेरिवेशन विल कम, नहीं डेरिवेशंस IFO एग्जाम्स में अब नहीं आती, बिकॉज आपका ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम है और ओपन बुक एग्जाम है, तो डायरेक्टली आपसे बुक वर्क वो टेस्ट नहीं करेंगे। बट येस, जब हम CT5 पोर्शन पे प्रोसीड करेंगे तो कुछ कुछ आपके फर्स्ट प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, वो आपसे पूछे जा सकते हैं, दैट विल कम लेटर ऑन। नाउ क्विकली राइट द क्वेश्चन अगेन। 500 इज इन्वेस्टेड इन एन अकाउंट दैट पेज अ फोर्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 8% per annum. Calculate the accumulated amount. Calculate the accumulated amount in the account after 3 years. In not more than 60 seconds. Quickly solve this. This should not take more than 60 seconds. अभी है, आप रख दो बस। परफेक्ट, आई हैव स्टार्टेड रिसीविंग आंसर्स, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो यहाँ पे भी आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप पहले आई का वैल्यू निकाल लो यूजिंग दिस थिंग, तो आई की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपके समवेयर अराउंड 8.3287%, ठीक है। या फिर वो करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं इसको, 800 अमाउंट कितना था, सॉरी 500 इंटू e⁻³ इंटू डेल्टा। You can use either of the approach. Final answer will be 635.62. तो यहाँ से हमने एक और रिलेशनशिप सीखा, क्या, जब हम पीछे देख रहे थे एक्यूमुलेशन फॉर n ईयर्स, i के टर्म्स में क्या आता था, 1 + i⁻n। अगर मैं इसको 1 + i को e⁻डेल्टा से रिप्लेस कर दूँ तो n टर्म्स का एक्यूमुलेशन इन टर्म्स ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, e⁻delta n. Again very important relationship. Accumulation for n years using force of interest will be e⁻delta n. Similarly, v का relationship in terms of i क्या था, v equals to 1/1 + i, this will become 1/e⁻delta, or you can say e⁻⁻delta. Similarly, अगर n years की डिस्काउंटिंग करानी है तो क्या हो जाएगा, e⁻⁻n delta. Students, clear till here? Now again write a quick question. A payment of 800 is due in 5 years time. A payment of 800 is due in 5 years time. Calculate PV at force of interest of 9% per annum. Calculate PV. PV I will use for present value. Calculate the PV with force of interest of 9% per annum. Again, not more than 60 seconds. Quickly solve it. Perfect, right answer students. Offline students, आया आंसर 510.10. सिंपली हमें से क्या पूछा हुआ है, 0 पे प्रेजेंट वैल्यू पूछी हुई है और टाइम 5 की मुझे वैल्यू बता रहा है कि 800. व्हाट आई विल बी डूइंग, 800 इंटू 1 + i⁻⁻5 और 800 इंटू e⁻⁻5 इंटू डेल्टा. दैट्स इट. You just have to put this into your calculators, put the delta value, and final answer will come as 510.10. Online students, is it clear till here? We are going to pace up from now on. तो हमने easy concepts रिवाइज कर लिए. तो अभी तक जितनी हमने notations पढ़ी हैं उन पे based अब हम 3 questions करने वाले हैं. You have to solve it in a great speed. So what you have given with, on first part you have been given with delta as 8%, in second part you have been given with I as 7%, and in third part you have been given with D as 9%.
So in first part you have to calculate I, I4 and D12. In second part you have to calculate D, D4, I2 and delta. And in last part you have to calculate I, D2, I12 and delta. So three parts. I am giving you 5 minutes in total. So first part I will be discussing in 2 minutes. तो डेल्टा गिवन है, डेल्टा से I4 और D12 निकालो इन नेक्स्ट 2 मिनट्स. तो जो फॉर्मूले यूज होने वो मैं आपको अपनी स्क्रीन पे बता देता हूँ सारे. फर्स्ट इज डेल्टा इक्वल्स टू ln 1 प्लस आई, और यू कैन से e रेज टू पावर डेल्टा इक्वल्स टू 1 प्लस आई. सेकेंड 1 प्लस आई इक्वल्स टू 1 प्लस आई p बाई पी रेज टू पावर p. थर्ड 1 माइनस डी इक्वल्स टू 1 माइनस डी पी बाई पी होल रेज टू पावर. सिर्फ ये 3 फॉर्मूला यूज़ करके आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए. दूसरा अगर एक और रिलेशनशिप देखना है तो आप ये देख सकते हो, v इक्वल्स टू 1/1 प्लस आई एंड इक्वल्स टू 1 माइनस डी. So Keshav, this is the question. You have been given with these 3 information and you have to calculate these. ये करके हमें सारी कन्वर्जन्स समझ आ जाएंगी. Okay, I have started receiving answers for the first part. तो मैं आपको फर्स्ट पार्ट पूरा करके दिखा देता हूँ, फिर बाकी पार्ट्स आप खुद करोगे. तो सबसे पहला रिलेशनशिप हमने सीखा है 1 प्लस आई इक्वल्स टू ई रेज टू पावर डेल्टा विच इज़ ई रेज टू पावर 0.08. तो यहाँ से मेरा आई कितना निकल के आ गया 8.33%. अब आई निकल के आ गया तो हम ये वाला रिलेशनशिप यूज़ कर सकते हैं. ये वाला रिलेशनशिप में हमें पी को 4 पुट करना है. तो 1 प्लस आई इक्वल्स टू 1 प्लस आई 4/4 होल रेज टू पावर 4. तो यहाँ से मेरा I4 निकल के क्या आ गया 8.08%. नाउ सिमिलरली कुछ बच्चों ने DP का डायरेक्ट कन्वर्जन याद रखा होता है, लेकिन मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगा DP का डायरेक्ट आप कन्वर्जन याद रखो. अगर रख सकते हो इट्स टोटली फाइन, अगर नहीं भी रखना तो आपको I के टर्म्स में सारे रिलेशनशिप्स याद होने चाहिए. हमें क्या निकालना है D12. तो आप ऐसे कंपेयर करो, अगर आपको इसको कंपेयर कराना है तो 1 प्लस आई इक्वल्स टू, या फिर हम ऐसे देख सकते हैं इसको 1/1 प्लस आई इक्वल्स टू वी इक्वल्स टू 1 माइनस डी. तो यहाँ पे आप इसका कन्वर्जन डाल दो, या फिर 1 प्लस आई तो हमारे पास आई है, इसको आप पुट कर दोगे विच इज़ 1/1.0833. दिस विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस डी की जगह मैं उसका पूरा इक्वेशन पुट कर दूंगा. व्हाट इज़ दैट 1 माइनस डी 12/12 हो रेज टू पावर 12. और यहाँ से मुझे D12 चाहिए था. D12 कैलकुलेट होके आ रहा है 7.97%. मैचिंग ऑल 3. परफेक्ट ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑल आंसर्स आर करेक्ट. नाउ फॉर पार्ट 2 एंड पार्ट 3 4 minutes more. Quickly solve all the 8 sub parts and tell me the final answers in next 4 minutes. किसी को किसी भी कन्वर्जन में कोई भी डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हो. ये वाला कन्वर्जन आपको थ्रू आउट इनिशियल चैप्टर्स बहुत हेल्प करेगा.
So students, to excel in CM1 you should be very good at calculators. So keep on increasing your speed on calculators. होना चाहिए नहीं ध्रुव, आप कह रहे हो आपका 8.07 आया है इंस्टेड ऑफ 8.08, तो आपने राउंडिंग में गलती करी है, चेक करो, गलती आनी चाहिए नहीं. Okay, I have started receiving few answers. Last 2 minutes. Okay, let me reveal final answers for second part. It is 6.54%, 6.71%, 6.88% and 6.77%. Anyone having any doubt in any of the sub part, do let me know. Otherwise proceed with the third part. Last 90 seconds. Perfect Aman, perfect Vishnu, perfect Mantasha, perfect Paridhi. Speed up for the third part. Okay, started receiving answers from the online students for the third part as well. So third part, I equals to 9.89%, then D2 equals to 9.21%, then I12 equals to 9.47%, and last delta equals to 9.43%. Quickly tally it. If anyone having any doubt, do ask me. डन. लास्ट 60 सेकेंड स्टूडेंट्स, किसी को कोई भी डाउट आ रहा है तो पूछ लो. नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी पे बेस्ड करने वाले हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी. ठीक है, नेक्स्ट अब हम एक टेबल क्रिएट करते हैं जहां से हम हर एक नोटेशन पे दूसरी नोटेशन पे जाने को सीख सके. तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या नोटेशन सिर्फ याद रखने हैं, कौन कौन से फॉर्मूले याद रखने हैं जिससे आप सारे कन्वर्ट कर लोगे. तो डेल्टा आई वी एन डी यहाँ पे लिख लो और यहाँ पे भी आप डेल्टा आई वी एन डी नोट कर लो. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है. अच्छा, यहाँ पे आप इसको डैश कर दो, ये तो ऑब्वियसली इक्वल है चारों. बाकी 12 वैल्यूज फिल करनी है.
तो मैं आपको एक वैल्यू फिल करके देता हूँ, बाकी वैल्यूज आप फिल करोगे। तो हमें क्या लिखना है बेटा, हमें आई लिखना है इन टर्म्स ऑफ डेल्टा। व्हाट विल बी आई इन टर्म्स ऑफ डेल्टा, 1 प्लस आई इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर डेल्टा, आई विल बी इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर डेल्टा माइनस 1. So this will become e raised to power delta minus 1. Now complete this table. I am giving you 5 minutes, then we will discuss. Try to complete this table. Yes, आपको ऊपर वाली वैल्यू को लिखना है इसके टर्म्स में। एक मैंने आपको लिख के दिखा दिया, यू हैव टू फिल आउट other 11 values. Okay, I have one question sir, which all formula we have to use? वही सेम फॉर्मूला मैं आपको वही बता देता हूँ, e raised to power delta equals to 1 plus I, then 1 plus v equals to 1 upon 1 plus I equals to 1 minus d. सिर्फ ये दो फॉर्मूले यूज करके आपके सारे फंक्शंस डिराइव हो जाएंगे, ओनली दिस टू फॉर्मूला, nothing else. Last 60 seconds for the first row. Last 60 seconds for the first row. Online students, quickly give your answers in the chat section for v in terms of d, sorry, for v in terms of delta and for d in terms of delta. Perfect Paridhi, I have received the final answer. Bhavya, what will be v in terms of delta? Perfect. Dhruv, what will be d in terms of delta? Perfect. 1 minus e raised to power minus delta. Perfect. Now for I row, I am giving you 90 seconds. First row done. Second row 90 seconds. Online students, quickly answer the second row. So e raised to power delta equals to 1 plus I, delta equals to ln 1 plus I. So first will be ln 1 plus I, then v in terms of I, तो v equals to हम हमेशा क्या बोलते हैं 1 upon 1 plus I, तो either you can write this or 1 plus I raised to power minus 1. Next will be I upon 1 plus I. तो ये वाला नोटेशन मैं आपको बोलूँगा, बहुत सारे नोटेशन नहीं बोलूँगा आपको, ये वाला नोटेशन अगर याद रख सकते हो तो रख लो, d equals to I upon 1 plus I, ये बहुत जगह यूज होता है, so you can learn this notation. Third row again 90 seconds. डेल्टा इन टर्म्स ऑफ v कैसे करेंगे? e raised to power delta equals to 1 plus I, that means e raised to power delta equals to v raised to power minus 1, है ना?
तो डेल्टा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एल एन वी रेस्ट टू पावर माइनस वन, और यू कैन से माइनस वन इंटू एल एन वी. So it will be minus ln v. Next, I in terms of v. V equals to 1 upon 1 plus I. Then you can say 1 plus I equals to v raised to power minus 1. I will be equals to v raised to power minus 1 minus 1. So v raised to power minus 1 minus 1. Last, d का तो हमें learn नहीं है, d equals to 1 minus v. Last row, again 90 seconds. Quickly solve, students. Quickly try to write the last row. Done? So what are the answers, Dhruv? Minus ln. Perfect. Perfect. ये तो simple है. This will be simply 1 minus t. Perfect. Students, just go through this table again. I am still waiting for 1 or 2 more minutes. Anyone having any doubt in any of the conversion, do ask me. तो यहाँ पे आपको जो मैंने 2 रिलेशनशिप्स लिखवाए हैं, सिर्फ यही लर्न करने हैं. इसके अलावा एक अगर और लर्न करना तो ये कर लो, d इक्वल्स टू आई अपॉन 1 प्लस आई. इसके अलावा आपको जो भी टेबल में हमने कन्वर्जन्स लिखे कोई भी याद नहीं करना. आपको करना आना चाहिए, हर एक को एक दूसरे में कन्वर्ट, लेकिन याद कोई भी नहीं रखना. Bhavya, confused? All done? Online students, any confusion in any of the part? Okay. Started receiving yeses from each one of you. Let us proceed. अभी तक हम क्या मान रहे थे कि हमारा डेल्टा कांस्टेंट है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा डेल्टा कांस्टेंट होएगा. हमारा डेल्टा कैन बी अ फंक्शन ऑफ टाइम एज वेल. तो अगर हमारा डेल्टा फंक्शन ऑफ टाइम होगा तो और हमें एक्यूमुलेशन करना है किसी टाइम t1 से t2 के ऊपर, तो उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं. उसका फॉर्मूला क्या होगा? इट विल बी एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन गोइंग फ्रॉम t1 टू t2. इट विल बी del s ds. del s ds. सिमिलरली अगर मुझे एक्यूमुलेशन n ईयर्स की करनी है, मीन 0 टू n करनी है, तो ये फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन वेयर टू वेयर? 0 टू n del s ds. चलो अप्लाई करते हैं फॉर्मूला और क्वेश्चंस देखते हैं. क्विकली राइट वन क्वेश्चन. द फोर्स ऑफ इंटरेस्ट एट टाइम t इज, the force of interest at time t is delta t, which is equals to 0.02 plus 0.01 t. The force of interest at time t is delta t, which is mentioned on my screen. Calculate the AV, calculate the accumulated value at time 8 of an investment. Calculate the accumulated value at time 8 of an investment of 1000 at time. 1000 at time, first part 0, second part 5. I will repeat the question. The force of interest at time t is delta t, mentioned on my screen. Calculate the accumulated value at time 8 of an investment of 1000 at time, first part 0, second part 5. So first part we will discuss in next 2 minutes.
Perfect, Vishnu, right answer. So it will be simply 1000 into accumulation 0 to 8. अगर टाइमलाइन बनाएं तो टाइम 0 से 8 तक जाना है, 0 की हमें 1000 वैल्यू दे रखी है और 0 को हमें एक्यूमुलेट कराना है टाइम 8 तक. तो दिस विल बी सिंपली इंटीग्रेशन 0 to 8, इंटीग्रेशन 0 to 8. अच्छा, एक्सपोनेंशियल लगा लो. इंटीग्रेशन 0 to 8 डेल एस क्या फंक्शन गिवन है 0.02 प्लस 0.01 टी इंटू डी टी. तो ये सिंपल सा इंटीग्रेशन है. तो 0.0 का 2 का क्या हो जाएगा t प्लस 0.01 टी स्क्वायर बाय 2. लिमिट्स 0 to 8. आफ्टर पुटिंग लिमिट्स इट विल बिकम 1000 मल्टीप्लाइड बाय e रेज़ टू पावर 0.48. फाइनल आंसर इज 1616.07. परफेक्ट स्पर्श, परफेक्ट परिधि, परफेक्ट विष्णु, परफेक्ट अनामिका, perfect offline students. Now quickly solve the second part. कुछ नहीं करना सेकंड पार्ट में चेंज, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक चेंज हो जाएगी. दिस टाइम यू हैव टू कैलकुलेट 1000 A 528. पहले आपने फर्स्ट पार्ट में एज्यूम करना था 1000 टाइम 0 पे इन्वेस्ट हो रहा है. सेकंड पार्ट में आपको बोला 1000 टाइम 5 पे इन्वेस्ट हो रहा है. तो बस यहाँ पे लिमिट आप 5 कर दो और मॉडिफिकेशन कर लो और फाइनल आंसर बता दो. Chapter is over. We will just do question practice now. अगर इन चैप्टर्स में से डायरेक्ट कुछ आ सकता है तो these type of questions can only come. Perfect students, final answer is coming out to be 1290 approximately. 1290.46 something. Perfect. Started receiving a lot of answers. Let us move to the next question. So this time you have to calculate accumulated value. Accumulated value from time 2 to time 10. ठीक है, मैं आपको टाइमलाइन ऑलरेडी बना के दे रहा हूँ. Of investment of 500 using your force of interest function as this. It is constant at 8% from time going between 0 to 5 and it is 0.13 minus 0.01 t when t is greater than equals to 5. 1290.46 सेम था, सिर्फ लिमिट चेंज होना था. Quickly do this. I am giving you 3 minutes. So you have to calculate 500 A 2 to 10. Zero point 13 minus 0.01.
नहीं, इस बार आपको ब्रेक करना पड़ेगा. यू हैव टू अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी हियर. हाउ? इट विल बी 500 इंटू ए टू 5 बिकॉज आपका फोर्स ऑफ इंटरेस्ट फंक्शन 5 पे ब्रेक हो रहा है एंड देन 5 to 10. तो यहाँ पे मुझे बताओ क्या इंटीग्रेशन करने की जरूरत है 2 to 5 तक करने के लिए? नहीं, बिकॉज हमारा फोर्स ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट है. ऐसा नहीं है इंटीग्रेशन करके हो नहीं सकता, बट वी विल नॉट वेस्ट अवर टाइम integrating a constant force of interest function. We can simply do it e raised to power 3 into 8%. And for other thing, what will be doing? Exponential from where to where? It will be from 5 to 10. 0.13 minus 0.01 t dt. I will reveal in next 2 minutes. ओके, आई हैव स्टार्टेड रिसीविंग अ लॉट ऑफ आंसर्स. तो आपका क्या आया ध्रुव? रॉन्ग है. 836.82 इज द राइट आंसर. देखो कहाँ गलती करी है. मेरे पास एक क्वेश्चन आया, तो सर क्या हम इसको इंटीग्रेट करके नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो. मैं आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा कि इंटीग्रेट करके नहीं कर सकते. मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, जब हमारा कांस्टेंट फोर्स ऑफ इंटरेस्ट था 8% कांस्टेंट था, तो हम इसको डायरेक्टली ई रेज़ टू पावर डेल्टा टी करके कर सकते हैं. मिल गई गलती. तो आप इसको इंटीग्रेशन करके भी कर सकते थे. कैसे? एक्सपोनेंशियल 2 to 5 0.08 ds. बट वो करने का रिक्वायरमेंट नहीं है. जब कांस्टेंट है तो आप डायरेक्टली ई रेज़ टू पावर डेल्टा टी कर सकते हो. तो भव्या करा था इंटीग्रेट या डायरेक्ट लिख दिया था? नहीं, इसको, इस वाले फंक्शन को नहीं करा था, डायरेक्ट लिख दिया था. ठीक है. ओके, तो अभी हमने एक्यूमुलेटेड वैल्यू पढ़ लिया. अब मुझे बताओ इसी तरीके से प्रेजेंट वैल्यू का क्या फॉर्मूला चेंज होगा? प्रेजेंट वैल्यू का क्या फॉर्मूला चेंज होगा? इट विल बी एक्सपोनेंशियल माइनस T1 to T2 डेल एस डी एस. सिंपली आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, पी वी इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्यूमुलेटेड वैल्यू. तो अगर कोई ई रेज़ टू पावर डेल्टा टी पड़ा हुआ है तो उसका ऊपर लाके क्या बन जाएगा? ई रेज़ टू पावर माइनस डेल्टा टी. तो वही वाला बस माइनस साइन आया. बेस्ड ऑन दिस लेट अस सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस. ठीक है. तो अभी अभी जो हमने फोर्स ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन पढ़ा था, ये वाला, ये सेम फंक्शन आपको यूज़ करना है, बट क्वेश्चन में आपको लिखवा रहा हूँ, क्विकली राइट इट. फर्स्ट पार्ट, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू एट टाइम 3. कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू एट टाइम 3 ऑफ अ पेमेंट ऑफ 500 एट टाइम 10. कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू एट टाइम 3 ऑफ अ पेमेंट ऑफ 500 एट टाइम 10. Second part, calculate annual effective interest rate that is equivalent to, calculate the annual effective interest rate that is equivalent to this variable force of interest from time 3 to 10 obviously. Calculate the annual effective interest that is equivalent to this variable force of interest from time 3 to 10. So first part I am giving you 2 minutes, 2 to 3 minutes. Yes Aman, you have to use same force of interest in this question as well.
Again students, you can apply principle of consistency. What you have to do here is 500 divide by accumulation 3 to 10. This time I am dividing it. So this will become 500 into accumulation 3 to 5 and 5 to 10. So this will become 500 into e raised to power minus 2 delta multiplied by exponential minus from time 5 to 10 del s ds. Just solve this. Perfect Paridhi, right answer. Perfect Sparsh, right answer. डन. क्या आया इस बार? सही आया. 323.63 is the right answer students. इसी तरीके से करें या इसको इंटीग्रेट करा था? ठीक है. तो बस ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि जहाँ हम अपना टाइम बचा सकते हैं वहाँ बचाएंगे. अगर कांस्टेंट डेल्टा है तो विल बी सिंपली यूजिंग e raised to power minus delta t. नाउ लेट अस सॉल्व द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे? अब ऐसे समझो हमारी टाइमलाइन में हमने निकाला क्या, हमने टाइम 10 पे कितना अमाउंट गिवन था क्वेश्चन में? 500 का अमाउंट गिवन था. हमने क्या बोला? 500 को जब हम डिस्काउंट करके टाइम 3 पे ले आए यूजिंग वेरिएबल इंटरेस्ट रेट 323.63 आ गया. तो क्या मैं सिंपली अपनी ये क्वेश्चन नहीं बना सकता? 323.63 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आई रेज टू पावर 7 विल बी गिव मी 500. Now I have to calculate I corresponding to that. Perfect. I will be 6.411%. ओके, आई हैव स्टार्टेड रिसीविंग अ लॉट ऑफ राइट आंसर्स. तो अब सेम जो हमारे पास डेल्टा टी है ना, उससे हम एक और क्वेश्चन करेंगे. अब हमने क्या निकालना है? डिटर्मिन एक्सप्रेशंस फॉर एक्यूमुलेशन फैक्टर फ्रॉम टाइम 0 टू t. तो मतलब आपको a0 टू t निकालना है. तो इसमें a0 टू t निकालने में दिक्कत क्या आएगी? दिक्कत ये आएगी कि हमें ये वाला t अभी नहीं पता कि वो 5 से बड़ा है या छोटा है. तो एक हमारा एक्यूमुलेशन फैक्टर निकलेगा a0 टू t व्हेन t इज बिटवीन 0 टू 5, और एक और हमारा एक्यूमुलेशन फैक्टर निकलेगा जब वी नो t शुड बी ग्रेटर देन 5. तो आपको ये दो एक्यूमुलेशन फैक्टर के मुझे एक्सप्रेशंस बताने हैं इन नेक्स्ट 3 to 4 minutes. Yes, you have to use same delta t again. तो व्हेन t इज लेस देन 5, तब तक के लिए तो एक्सप्रेशन बहुत ईजी है क्योंकि हमें पता है डेल्टा हमारा कांस्टेंट है. तो क्या हो जाएगा फंक्शन हमारा? एक्यूमुलेशन a0 टू t विल बी सिंपली एक्सपोनेंशियल 0.08 t.
Now a0 to t, when t is greater than 5, it will be a0 to 5 multiplied by a5 to t. और ये फंक्शन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हमें सिर्फ क्या निकालना है, ये वाला फंक्शन. और ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन 5 to t del s ds. Quickly solve it and tell me the second part. Second part क्या आ रहा है आपका, ये वाला कैलकुलेट हो गया. ओके, देयर इज वन क्वेश्चन, सर अगर ये ब्रेक्ड फंक्शन 3 या 4 फॉर्म में होता तो क्या हमारे 3 या 4 एक्सप्रेशन से निकलते? बिल्कुल सही है बेटा. जितनी बार आपका डेल्टा फंक्शन ब्रेक्ड होगा उतनी ही आपके एक्यूमुलेशन के एक्सप्रेशंस बनेंगे. परफेक्ट अनमोल, दिस इज कमिंग आउट टू बी e raised to power 0.13t minus 0.005 into t square minus 0.525. And हाँ, तो t को आप 5 फुट कर दो ना, करना पड़ेगा, मतलब इसको आप 0.08 t ले ही नहीं सकते हो. दिस विल बी इनटू 5. फाइनल आंसर बस ये वाला जो 0.4 है ये इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा. तो फाइनल आंसर इज e raised to power 0.13t minus 0.005 t square minus 0.125. Matching? Online students, quickly match it. Then we will do 1 or 2 more questions before winding up. We are done with this chapter, interest rates. और इस इंटरेस्ट रेट चैप्टर्स में ये वाला जो हम टॉपिक कर रहे हैं अभी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है डायरेक्ट आने के लिए. बाकी सब चीज़ें हमारा बेस बिल्डअप कर रही है. नहीं, इसको मल्टीप्लाई बाय 5 करना ही पड़ेगा. देयर इज वन क्वेश्चन, सर इसको हम रेज़ टू पावर टी को इसके साथ इंक्लूड नहीं करवा सकते. देयर इज वन क्वेश्चन, ये जो 0.08 टी है, ऑनलाइन स्टूडेंट इज आस्किंग क्या हम इसको 0.13 टी के साथ इंक्लूड नहीं करा सकते? यस और नो? नहीं करा सकते. क्यों नहीं करा सकते? बिकॉज टाइम 5 तक की एक्यूमुलेशन हो चुकी है. अगर हम टाइम 5 के बाद देख रहे हैं, अगर हम टाइम 6 पे स्टैंड कर रहे हैं, तो टाइम 5 तक घट चुका है कोई चीज़. अगर कोई टाइम 5 तक घट चुके तो वहाँ तक की एक्यूमुलेशन हमें 8% के हिसाब से करनी थी, और वो हो चुकी है ऑलरेडी. और वो किस रेट से हुई है? a0 से 5 e raised to power 0.4 रेट से हो चुकी है. तो इसको आप t नहीं लिख सकते हो, इसको आपको 5 से मल्टीप्लाई करवाना ही पड़ेगा. इज इट क्लियर टू यू? नंदिनी, दिस वॉज योर डाउट. ठीक है, लेट मी फाइंड आउट 1 or 2 मोर क्वेश्चंस. ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर वाइंड अप करेंगे, बिकॉज इस चैप्टर में इतना कुछ है नहीं प्रैक्टिस करने के लिए. आपको डेल्टा टी का फंक्शन गिवन है बेटा 0.04 प्लस 0.002 टी, देन 0.015 टी माइनस 0.08 एंड लास्ट इज 0.07. और कैसे कैसे ब्रेक है ये? फर्स्ट है टाइम 0 to 10 के लिए, सेकेंड है टाइम 10 to 12 के लिए, और थर्ड है t greater than 12 के लिए. The question is again you have to derive expressions for this time present value. Present value at time 0. You have to calculate present value of 1 unit
at time 0, due at any time t. Question is clear? Quickly solve. I am giving you 7 minutes for this question. This will take some time because this time you have to break it into 3 parts. Definitely, Aradhana, you will be getting 3 VTs. VT, VT, VT. VT for t lying between 0 to 10, VT for t lying between 10 to 12 and VT for t greater than 12. तो पहले VT की चलो बात कर लेते हैं हम. VT will be equals to exponential minus where to where 0 to t. When this t lying between 0 to 10, so it will be 0.04 प्लस 0.002 एस डी एस. ठीक है, आप यहाँ पे t मत रखना बिकॉज हम ऑलरेडी लिमिट्स के अंदर t को यूज़ कर रहे हैं. सो इट विल बी 0.002 एस डी एस. तो इसको इंटीग्रेट करके आई एम श्योर कि इंटीग्रेशन सबका बहुत शार्प है CM1 स्टार्ट करने से पहले. 0.04 t माइनस 0.001 t स्क्वायर. तो पहला एक्सप्रेशन ये आ गया. अब सेकंड जब हम कर रहे होंगे तो दिस इज फॉर t गोइंग बिटवीन 0 to 10. नाउ फॉर t गोइंग बिटवीन 10 to 12 vt फंक्शन जब आप कर रहे होगे तब आप डायरेक्टली v10 ले सकते हो. ठीक है, पहले एक्सप्रेशन जो आपने निकाला है वहाँ पे t को आप 10 पुट कर सकते हो. तो t को 10 पुट करके हमारी ये वैल्यू क्या आ रही है, e रेज़ टू पावर माइनस 0.5. दिस मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, एक्सपोनेंशियल लिमिट्स माइनस 10 टू t अगेन डेल एस डी एस. तो डेल एस इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, 0.015 s माइनस 0.08 डी एस.
सेकेंड वन डन। तो सेकेंड का हमारा क्या आ रहा है बेटा इंटीग्रेट करके, एक्सपोनेंशियल माइनस 0.0075 टी स्क्वायर प्लस 0.008 टी एंड देन माइनस 0.05। ठीक है, इन सबको कंबाइन करके क्या बन जाएगा ये, एक्सपोनेंशियल माइनस 0.0075 टी स्क्वायर प्लस 0.08 टी एंड ये कितना बन जाएगा 0.05 एंड 0.055, इट विल बिकम 0.55। नाउ फॉर लास्ट वन वी टी फॉर t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12, इस बार सिंपली क्या हो जाएगा, आप इस फंक्शन के अंदर क्या पुट कर दोगे 12, दिस विल बी v12 मल्टीप्लाइड बाय। अब मुझे बताओ आखिरी वाला जो डेल्टा था क्या वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है, कांस्टेंट है 0.07, तो कांस्टेंट है कितने ईयर्स के लिए है वो, नो आइडिया है, आइडिया सोचो कैसे। माई क्वेश्चन टू यू ऑल ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जो आखिरी वाला डेल्टा है वो हमें कितना परसेंट दे रखा है, 7% दे रखा है, और ईयर्स मुझे ऑफलाइन स्टूडेंट ने बोला हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है ईयर्स कितने, सोचो हमें टी ईयर से डिस्काउंटिंग करनी है, स्टार्ट कहां से हो रहा है 12 से, 12 से टी तक जाना, तो कितने ईयर्स हो गए t माइनस 12, सिंपल। सो दिस विल बी एक्सपोनेंशियल 0.07 ब्रैकेट्स में t माइनस, माइनस लगेगा ना, माइनस लगेगा ओवरऑल पे। समझ आया ये मैंने कैसे करा। अब दिस इज नॉट द ओनली वे, आपको नॉर्मल ट्रेडिशनल वे इंटीग्रेशन से करना कर सकते हो, बट अगेन दिस विल सेव योर टाइम। तो तीसरे वाले एक्सप्रेशन पे आपको इंटीग्रेशन लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सिर्फ इस फंक्शन में अब 12 फुट करो, 12 फुट करके आपका आ रहा है e रेज़ टू पावर माइनस 0.67 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ से आपका आ जाएगा e रेज़ टू पावर माइनस 0.07 t प्लस 0.84। Overall this will be e raised to power 0.07 t plus 0.17. So students quickly go through it. अब यहीं अगर आप इंटीग्रेट करते तो आपके अगेन 2-3 मिनट्स यहाँ पे इन्वेस्ट होते, और वही 2-3 मिनट्स हम एग्जाम में बड़े क्वेश्चन के लिए सेव करेंगे तो बहुत हेल्प होएगा। देखो अभी हम CM1 की बहुत स्टार्टिंग पे है, जब ये अगर आएगा भी तो ये हार्डली 4-5 मार्क्स आएगा, लेकिन हमें अपना जो टाइम है वो 15-20 नंबर के क्वेश्चंस के लिए बचा के चलना है। तो कभी भी हम एग्जाम स्टार्ट करेंगे तो वी विल स्टार्ट विद लॉन्ग क्वेश्चंस, वरना इन क्वेश्चंस को करने में अगर हम टाइम इन्वेस्ट कर भी देंगे तो मार्क्स तो उतने ही आने 4-5 नंबर, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्विकली गो थ्रू इट, इफ यू हैव एनी डाउट्स डू आस्क मी। ऑफलाइन स्टूडेंट्स क्लियर? Yes, you can do with accumulation thing as well. आप हर एक का accumulation फैक्टर निकाल सकते हो और उसको 1 से डिवाइड करके डायरेक्टली उसका प्रेजेंट वैल्यू कमेंट कर सकते हो, नो इश्यूज इन दैट। अच्छा एक क्वेश्चन आया कि सर जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने e रेज़ टू पावर 0.08 इंटू 5 करके करा था और इस क्वेश्चन में हम t से कर रहे हैं, तो उद्देश्य आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन को समझो दोनों में डिफरेंस क्या था। पिछले क्वेश्चन में हमने क्यों करा था, क्योंकि हम एक्यूमुलेशन फैक्टर निकाल रहे थे और हमें जो 8% गिवन था फिक्स्ड वो फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए गिवन था, और हम यहाँ से 0 से आगे जा रहे हैं, तो हमें पता था पहले 5 साल के लिए फिक्स्ड, अगर टाइम ग्रेटर देन 5 है तो आप पक्का 5 साल से आगे निकल चुके हो, तो पहले 5 साल की एक्यूमुलेशन आपने फिक्स कर दी थी 0.08 इंटू 5 से, तो उस वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। अब अगर हम इस वाले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे कैसे कैसे डिवाइडेड है टाइम 10, 12 एंड 12 से बाद। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं अगर आपने प्रेजेंट वैल्यू किसी टाइम t यहाँ से निकालनी है तो आपने उसके लिए फैक्टर निकाल लिया, फिर किसी टाइम t यहाँ से निकालनी है तो आपने इसके लिए फैक्टर निकाल लिया। अब आपका टाइम अगर ग्रेटर देन 12 है, आपको नहीं पता वो ग्रेटर देन 12 कहाँ तक चला जाएगा, हो सकता है वो 20 तक जाए, हो सकता है वो 30 तक जाए, हो सकता है वो 50 तक जाए, तो आपको नहीं पता कितने ईयर्स आपने और पीछे आना है, तो आपने 12 तक के लिए फैक्टर निकाल लिया था e रेज़ टू पावर माइनस 0.67। अब मान लो हो सकता है उससे आधा साल ही आगे जाए, अगर आधा साल आगे जाएगा तो हम क्या बोलेंगे 12.5 माइनस 12,
अगर 1 साल आगे जाएगा तो हम क्या बोलेंगे 13 माइनस 12। तो ये वाला जो वेरिएबल है ये t माइनस 12, ये आपको पता नहीं है कितने ईयर्स है और कहाँ से आपने डिस्काउंटिंग करनी है। समझ आया उदिशा? तभी हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, ई रेज टू पावर माइनस डेल्टा इंटू टी माइनस 12। इज इट क्लियर? नहीं, t के टर्म्स में ही आपका आंसर आएगा। सन्निका, यू आर आस्किंग मी वी हैव टू एज्यूम t? नो, यू डोंट हैव टू एज्यूम t बिकॉज द फाइनल आंसर दैट यू आर गेटिंग इज इन टर्म्स ऑफ t ओनली। अब ये t ये पक्का है कि पक्का 12 से बड़ा ही होने वाला। सन्निका, इज इट क्लियर टू यू? उदिशा इज सेइंग इट्स क्लियर। ओके, आई थिंक ठीक है, टाइम भी हो गया एंड वी आर ऑलमोस्ट डन विद दिस क्वेश्चंस प्रैक्टिस एंड वी डोंट हैव मच टाइम टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड।